بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت اور تندرستی کے ساتھ میں ہوں نوشین خان۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، خیریت سے رہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور جو لوگ صحت کا خیال نہیں رکھتے، بالکل جی کچھ کھانے پینے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ بد پرہیزی ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے، کچھ موسم کی تبدیلی کا اثر ہوتا ہے، تو یہی ساری چیزیں مل کے جو ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز پہ نظر رکھا کیجئے، کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے اور صحت جو ہے بالکل ہزار نعمت ہے۔ چاہے دنیا کی ساری دولت آپ لگا دیں اور آپ کی صحت خراب ہو جائے تو پھر بڑی مشکل سے ہی دوبارہ صحت جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ توجہ رکھیں اپنے رہن سہن پہ، اپنے کھانے پینے پہ، اور جو ارد گرد کے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بنے ہوئے کھانے جو مل رہے ہوتے ہیں، لوگ گھروں کا کھانا چھوڑ کے باہر کے کھانوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کیجئے کہ گھر کے بنے ہوئے صاف ستھرے ماحول میں جو ہے کھانا پکا ہوا وہ آپ استعمال کریں، وہ صحت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھار جو ہے انسان ہے، ظاہر ہے تھوڑا بہت موڈ ہو جاتا ہے، باہر سے پکا ہوا کھانا جو ہے وہ آپ لوگ کھا لیتے ہیں، کوئی انجوائمنٹ ہوتی ہے، کوئی پکنک ہوتی ہے تو اس میں موقع مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار تو چل جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عادت ہی بنا لیتے ہیں، باہر کا پکا کھانا جو ہے ان کو ایک ٹیسٹ سا آ جاتا ہے اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو یہ خیال کیا کیجئے کہ تھوڑا سا صحت کا یہاں پہ معاملہ ہے۔ تو بالکل جی، ایک تو صحت کا بہت خیال رکھیں کھانے پینے کے حوالے سے، اور دوسرا سردیوں کا موسم ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں پیاس نہیں لگتی ہے، تو لوگ جو ہیں گرمیوں میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ایک مناسب مقدار میں پانی کا استعمال رکھتے ہیں، لیکن سردیاں جب آتی ہیں تو ہم پانی پینا بھی بہت کم کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، پورے دن میں 1-2 گلاس پی لیے، وہ بھی کھانے کے دوران پی لیے، حالانکہ کھانے کے دوران جو ہے کہا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہے پانی کا استعمال کرنا چاہیے یا کھانے کے درمیان میں، لیکن کھانا کھانے کے بالکل اینڈ پہ آپ پانی کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کھانے کے 1 گھنٹے بعد یا پورا دن پڑا ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ پانی کافی مقدار میں لے سکتے ہیں، وہ بھی صحت کے لیے، اچھی صحت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قدرتی پھل ہیں موسم کے حساب سے آئے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ویسے تو ظاہر مہنگائی ہے، بہت کم لوگ جو ہیں پھل فروٹ جو ہے اس کا استعمال رکھتے ہیں، لیکن اگر صحت اچھی چاہیے تو بجائے اس کے کہ فضول جگہوں پہ آپ پیسہ جو لگا رہے ہوتے ہیں کھانے پینے میں، وہ آپ فروٹس وغیرہ پہ لگا لیا کریں تاکہ کچھ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو سکے۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ کا سیزن ہے جی، تھوڑا بہت وہ بھی استعمال کر لیا کیجئے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل پیٹ بھر کے ہر چیز کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوشش کیا کیجئے کہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں چیزوں کا استعمال رکھیں، جیسے کہ ڈرائی فروٹ ہے تو ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں کہ اکثر جب آپ ڈرائی فروٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ایک مٹھی کے اندر، جتنا آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی کے اندر ڈرائی فروٹ آ سکتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی مقدار میں اگر ڈرائی فروٹس آپ لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چکناہٹ ہوتی ہے یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی کافی سارے پرابلم ہوتی ہے۔ ہر چیز میں ایک جو ہے حد ایک رکھنی چاہیے، حد سے تجاوز جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح آپ کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے حد سے تجاوز مت کیجیے، کیونکہ یہ اچھی صحت کا سوال ہے۔ تو بالکل جی، یہ پروگرام آپ کی اچھی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ایک لائیو کال کے ذریعے، اور لائیو کال کے ذریعے آپ اس طرح شامل ہو سکتے ہیں کہ اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنی رپورٹس دکھانے کے لیے یا پھر اپنی بیماری کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ کی بات چیت نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی رپورٹس، آپ کے ٹیسٹ اور جو بیماری ہے اس حوالے سے تفصیلاً آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے نمبرز بھی نوٹ کر لینے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو کے ڈاکٹر صاحب سے اپنا طبی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آج ہم پروگرامز کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ کچھ مکس کوسچن ہم بیماریوں کے حوالے سے کریں گے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے حوالے سے بات کی جائے بیماری کے حوالے سے، تو ضرور جی آپ بھی شامل رہیے۔ ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، پھر مزید سوالات بھی ہم ان سے کریں گے، تو یہاں پہ ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम आज मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जल्दी से उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब मौजूद हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, कुछ खाने पीने के हवाले से, कुछ सर्दियां हैं, पानी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जा रहा है, तो उस हवाले से थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ज़ाहिर ज़रूरी है कि हम खाने पीने का जो इस्तेमाल है वो एक हद में रखें, और जैसे कि सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कुछ लोग हैं वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर तो आपके लिपिड प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह आपने बताया कि फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर्स ये बताना शुरू कर दें तो फिर दवाइयाँ तो नहीं बिकेंगी ना, फिर कैल्शियम की दवाई कौन लेगा, फिर मैग्नीशियम कौन लेगा, फिर ये सप्लीमेंट्स कौन ख़रीदेगा। तो इसी वजह से डॉक्टर्स जो है वो सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह बाहर दुनिया में भी हो रहा है वो डाइट पे फोकस करते हैं। अगर किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, तो वो एप्पल पे तरजीह देते हैं, वो अनार की तरफ बताते हैं, फ्रूट्स की तरफ जो है वो पेशेंट को बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हम दवाइयों पे बता रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो उस फिर सप्लीमेंट्स के नतीजे में फिर जिस्म में काफ़ी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कैल्शियम के ज़्यादा लेने से पथरी बनना शुरू हो जाती है गुर्दे में। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए हमारी। और कुछ लोग डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ज़ाहिर है आपके अंदर किसी चीज़ की डिफिशिएंसी है तो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो अदरवाइज़ आप डॉक्टर के मशवरे से या फिर अपना मुकम्मल एक मुआयने के बाद ही आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपके अगर कोई न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी अगर आप में है, विटामिन की कोई डिफिशिएंसी है, तो वो आपने पूरी करनी है, लेकिन वो भी आप खुराक से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी के लिए वो बताते हैं कि ये इंजेक्शन हफ्ते में दूध में डाल के पीना है, गोली खानी है। डॉक्टर ये क्यों नहीं बताते कि आप सुबह 1 घंटा धूप में बैठें तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका जो विटामिन डी है वो आपको मिलेगा। विटामिन डी आपको दूध से जो है वो इतना ज़्यादा मिल सकता है जितना उस इंजेक्शन से भी नहीं मिलता, जो आप हफ्ते में 1 पीते हैं दूध में। बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीक़ों से हम जो हैं ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, हालांकि कुदरत ने हमारे लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा है, तो हमें थोड़ा बहुत जो है तवज्जो की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे तवज्जो दें जो कुदरती चीज़ें हैं, तो उनका हमें फ़ायदा भी हो सकता है। तो खैर जी, हम आते हैं अपने सवालात की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी टाइफाइड के हवाले से कि टाइफाइड है क्या? टाइफाइड तो एक बुखार है, इसे मयादी बुखार भी कहते हैं और बड़ा बुखार भी इसे कहा जाता है। ये जो बुखार है ये आपकी आंतों को इफ़ेक्ट करता है, और ये अगर किसी को हो जाए उनको डायरिया भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, और ये 3-4 हफ्ते तक मुसलसल जिस्म में रहता है। अच्छा, अब ये जो टाइफाइड है ये आता कहाँ से है? ये एक इसकी क्या? जी, ये एक बैक्टीरिया है, सल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये जो टाइफाइड फीवर है ये जन्म लेता है। ठीक है, अब वो जो सल्मोनेला बैक्टीरिया है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके कंटेमिनेटेड वाटर से, यानी गंदे पानी से। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं उससे आपको आ सकता है, या आप अगर बाज़ारी खुराक खा रहे हैं, गंदा खुराक खा रहे हैं, उससे भी आपको हो सकता है। तो 2 सोर्सेस है, गंदा पानी और गंदी ग़िज़ा। बिल्कुल, नाकिस खुराक। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में चीज़ें बताई थी कि हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर बाहर के खानों को, बजाय इसके कि हम घर के अंदर जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि सब्जियां बनी हुई हैं या दालें बनी हुई हैं, तो घर वाले 2 अफराद तो खाएंगे, 3 अफराद जो है उनको पसंद ही नहीं होती, वो कहेंगे जी बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। देखिए जी, होटलों में और रेस्टोरेंट्स में आम तौर पे ये प्रैक्टिस होता है कि जो चीज़ बच गई उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, उधर नुकसान हो रहा है, तो वो इस चीज़ को, उस खुराक को, जैसे कि समोसे पकोड़े हो गए, ठीक है, वो रखते हैं, फिर सुबह जब होती है दोबारा वो गर्म करके बेचते रहते हैं। ठीक है, नुकसान से बचाना होता है। बिल्कुल, यही वजह फिर बनती है टाइफाइड जैसे बैक्टीरिया की, यही वजह बनती है। और हाँ, और एच पाइलोरी भी इन खानों की वजह से बनता है। बिल्कुल जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइफाइड
ایک جراثیم ہوتا ہے جو ہمیں ناقص خوراک اور آلودہ پانی جو ہے اس کے استعمال سے ہو سکتا ہے، جس سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ٹائیفائڈ سے ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہم ان کھانوں کو اوائڈ کریں، یا پھر پانی جو ہے آلودہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہیں پانی آلودہ آ رہا ہے تو اسے ہم ابال کے استعمال کر لیں۔ تو کیا ہومیوپیتھی میں ٹائیفائڈ کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے؟ بالکل، ہومیوپیتھک میں ٹائیفائڈ سے بنی ہوئی، ٹائیفائڈ جراثیم سے بنی ہوئی دوائی بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹائیفائڈینم کے نام سے، ٹھیک ہے، ایک نوسوڈ بنایا جاتا ہے سلمونیلا بیکٹیریا کا، اس سے ٹائیفائڈ کا کامیاب علاج ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائیفائڈ اگر آپ کو ایک دفعہ ہو جائے تو وہ آپ کی آنتوں میں سوزش پیدا کرتا ہے، انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، اور پھر اگر ٹائیفائڈ آپ کا ختم بھی ہو جائے وہ سوزش آنتوں میں زندگی بھر پر رہتی ہے۔ پھر جو لوگ خاص طور پہ جو پرہیز نہیں کرتے، جو ٹائیفائڈ کا جو پرہیز ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، پھر ان کو زندگی بھر اس پرابلم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں سوجن ہو جاتی ہے، تو ہم ان سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ آیا آپ کو پہلے کبھی ٹائیفائڈ تو نہیں ہوا؟ تو عموماً یہی جواب ملتا ہے کہ ہاں ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ نے اس میں پرہیز وغیرہ کی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، پرہیز تو کوئی خاص نہیں کی تھی۔ تو پھر ہم ان کا کیس لیتے ہیں اور انہی چیزوں کو پھر ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، بعض اوقات تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ہی کچھ علامات ظاہر ہوئی ٹائیفائڈ کی، کچھ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی موسمی بخار ہے یا نارمل بخار ہو رہا ہے، خیر ہے، سردی لگ رہی ہے یا پھر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو ان کا وہ سیلف میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی تھوڑا بہت جو ہے علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کتنی مطلب پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ ابتدائی علامات کیا ہیں اور مطلب اس کی جو مین علامات ہیں وہ آپ بتا دیجئے تاکہ پھر لوگوں کو یہ تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے۔ دیکھیں جی، جب آپ کو اگر ٹائیفائڈ فیور ہو گیا تو پہلے ہفتے میں آپ کو بخار جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عموماً اس میں 102 سے لے کے 104 تک بخار رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب آپ دوائی لیتے ہیں تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے دوبارہ وہ بخار چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ مریض پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آنتوں میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کو درد ہوتی ہے، بعض اوقات یہ درد ناقابل برداشت بھی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں پھر ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے۔ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریا کا شکار ہو جاتا ہے، ڈائریا کے ساتھ ساتھ وہ الٹی بھی کرتا ہے، وومٹ بھی کرتا ہے، تو جب ایسی کیفیات اکٹھی ہو جائے تو فوری طور پہ ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ ریلیونٹ ٹیسٹ جو اس کے ہیں تو وہ جو کیے جائیں تو پھر اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہی ہے، پھر اس کا پراپر علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہم اگر اس کو ڈائگنوز نہ کریں اور سیلف ٹریٹمنٹ کرتے رہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے رہیں تو یہ ٹائیفائڈ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کافی اموات اس سے ہو بھی چکی ہیں۔ بالکل، ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کیا نام ہے چوک پنڈوری سے بات کر رہا ہوں، روشن الدین نام ہے میرا، ولدارا فوجی۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا تھا کہ میرے ہاتھ اور پیر سن ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں؟ ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے؟ نہیں، وزن تقریباً ٹھیک ہے، 76 سال میری عمر ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی شوگر یا بلڈ پریشر کے نہیں، امراض؟ نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، کچھ بھی نہیں، سب چیز ہے۔ کوئی دل کی دوائی ہے وہ میں کھاتا ہوں، ایم ایچ سے میں لیتا ہوں، تو وہ تو میں ابھی کسی کی اینجیوگرافی ایکیو وغیرہ کرائی ہے، اس میں سب کلیئر ہے الحمدللہ۔ یہ جو ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے ہیں ان کا بس آپ سے مشورہ لینا، کیا کروں اس کا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کلر سیدہ چوک پنڈوری کلر سیدہ۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں، وہ استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں پیروں کی یہ جو جلن ہے یہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ کال کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جلن، ٹھیک ہے، ہاتھوں پیروں کا جلنا،
अब इसकी भी 2-3 वजूहात हो सकती है, या तो डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, या हाई यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकती है, या बाज़ औक़ात चिलब्लेन्स भी हो जाते हैं सर्दी में, ठीक है। अगर ये चिलब्लेन्स हैं, सिर्फ सर्दी में इनको ये अलामात हो रही है, तो फिर इसकी दवाई है कास्टिकम। कास्टिकम इसकी अच्छी दवाई है चिलब्लेन्स की, ठीक है। इसके साथ इनकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर यूरिक एसिड की वजह से है तो फिर इसकी दवाई है एसिड बेंज। तो इनकी जो अलामात हैं मुझे एसिड बेंज से मैच हुई नज़र आई है, तो एसिड बेंज दवाई इनको इस्तेमाल करनी चाहिए 30 पोटेंसी में, तो इनको इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। और मज़ीद इनको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना चाहिए ताकि प्रॉपर इनकी अलामात लें और इनको मज़ीद रेलेवेंट दवाई बता सकें। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि दवा का नाम तो बता दिया है, आप उसका इस्तेमाल भी करें, लेकिन बेहतर ये होगा कि व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब से रब्ता कर लीजिए ताकि मज़ीद जो है तफसीलन आपकी बीमारी के हवाले से बातचीत हो सके और उसके हवाले से इलाज हो। तो बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के हवाले से बातचीत हो रही थी और डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना हो या सेल्फ मेडिकेशन पे जो लोग चले जाते हैं उनको इतनी समझ बूझ नहीं हो रही होती कि भाई ये बीमारी जो है ये पेचीदा भी हो सकती है। तो इस सूरत में क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? जैसे कि आपने कहा कि जानलेवा मर्ज ये एक तरह से हो सकता है। बिल्कुल जी, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक सल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसकी जद में आया होता है। तो आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है तो उधर आपका लिवर भी कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, आपका स्प्लीन भी कंप्रोमाइज हो सकता है, इवन के आपके गुर्दे भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका फौरी तौर पे जो है देखिए, अगर आपको वोमिट हो, आपको डायरिया हो तो ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट तो करना चाहिए। फिर अगर ये तकलीफ़ आपकी 1-2 दिन से ज़्यादा हो गई और फिर भी अगर आप घर में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो ये बहुत जानलेवा अमल साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए दवा और इलाज बड़ा ज़रूरी होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन की बार बार हम बात करते हैं क्योंकि आप लोग घरों के अंदर या सर दर्द हो गया जी तो मेडिसिन ले ली, कहीं पेट में तकलीफ़ हो गई तो मेडिसिन ले लीजिए, आराम आ जाएगा। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपना मुआयना करवाएं और उसके हवाले से ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। हम आए रोज़ हम देखते हैं कि लिवर फेल हो गया किसी का, आए रोज़ हम देखते हैं कि गुर्दे फेल हो गए। जब हम डायग्नोस करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो सारा ड्रग एब्यूज़ की वजह से होता है, ठीक है। आज हमारे पास एक पेशेंट आई जिनका लिवर जो था वो ग्रेड 4 फेलियर में था, ठीक है। तो उनकी जब मैंने हिस्ट्री देखी तो वो 8 साल से थायरोक्सिन ले रही थी 4-4 गोलियां और इसके अलावा और मज़ीद दवाइयाँ ले रही थी। तो उसका जो लिवर था वो कब तक बर्दाश्त कर पाता? 8-10 साल तक बर्दाश्त कर पाया, लेकिन आखिरकार वो बिल्कुल जाहिर है थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ तौफाकवीर से। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे पथरी है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है। जी जी पूछिए। गुर्दे में पथरी है? जी जी, गुर्दे में पथरी है सर। वो व्हाट्सएप भी हमने आपकी तरफ किया था, मोहम्मद रमजान। ठीक, और कितने mm की पथरी है? 1.8 cm सर एक। अच्छा, फिर तो आपको ठीक ठाक अरसे के लिए दवाई लेनी होगी। हाँ जी हाँ, मैं इसलिए मशवरा कर रहा हूँ, बगैर ऑपरेशन के लिए हो सकता है तो फिर? बिल्कुल हो सकता है। पहले भी आपको कभी गुर्दे में पथरी बनी? हाँ पहले मुझे बनी है, तकरीबन 15-20 साल हो गए मैंने ऑपरेशन किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ भी है। आप इस तरह कीजिएगा कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और चावल का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और दवाई मैं आपको बताता हूँ ये इस्तेमाल करनी है आपने 5-6 महीने तक रेगुलर, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो गुर्दे में पथरी और फिर 1.8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक बड़ी पथरी है, इनको इलाज काफ़ी अरसा लेना चाहिए। अब यहाँ 2 दवाइयाँ आती हैं, एक है बर्बीरस। बर्बीरस जो दवाई है ये गुर्दों की पथरी की बड़ी कामयाब और मौसर दवाई है। बर्बीरस इन्होंने लेनी है क्यों ताकत में, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे दोपहर को निहार पेट, ठीक हो गया।
ये इन्होंने लगातार लेनी है 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड करके देखना है कि आया पथरी कितनी कम हुई है। दूसरी दवाई इनको जो ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया क्या करती है कि हाइड्रेंजिया जो इतनी बड़ी पथरी होती है वो इस पथरी को रेजे की शक्ल में खारिज करने में मदद करती है। तो हाइड्रेंजिया भी क्यू में लेनी है 10-10 कतरे, और बर्बेरस भी क्यू में लेनी है। तो 3 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि ये 1 सेंटीमीटर से कम साइज पे आ चुकी होगी इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह आपने दवा का इस्तेमाल जो है वो करना है। दवाओं के नाम डॉक्टर साहब ने बता दिए हैं। अगर मज़ीद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, आप नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब से तफसीलन बात कर सकते हैं। तो खैर जी, हम आते अपने टॉपिक की तरफ, और जैसा कि टाइफाइड के हवाले से बातचीत हो रही थी तो हम सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे कि जब भी ऐसी कोई इलामत आप देखते हैं अपने जिस्म के अंदर तो ज़रूर आप डॉक्टर से मुआलिज से रब्ता करें। खैर, जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब कहा कि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। जैसे टाइफाइड होता है तो काफ़ी एक टाइम चाहिए होता है इसके इलाज में, तो तकरीबन होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल से कितने टाइम में ये कवर हो सकता है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि बाज़-औक़ात सारी ज़िंदगी भी इसके साथ रहना पड़ जाता है, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो कितने परसेंट जो है आप समझते हैं होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है? होम्योपैथी में इसका 100% इलाज मौजूद है, लेकिन मरीज़ क्या करते हैं, हमारी मरीज़ों की गफलत ये है कि वो जब दवाई इस्तेमाल करते हैं वो समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। जब मरीज़ ख़ुद फील करता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो वो इलाज बंद कर देता है, ठीक है, वो बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। इसमें मरीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ पहले ही हफ्ते में उसको आराम आ जाता है, उसको रिलीफ आ जाता है, लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रोब है, ये दोबारा भी घर बना सकता है आपकी आंतों में। तो कम से कम 3 महीने तक रेगुलर जब मरीज़ दवाई लेगा तो उसके टेस्ट भी नेगेटिव आएंगे और उसके जो बाद में जो असरात हैं टाइफाइड के उससे भी बचाया जा सकता है मरीज़। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अक्सर हम देखते हैं कि मेडिसिन जो इस्तेमाल हो रही होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करके लोग ये समझ रहे हैं कि हमें आराम आ गया तो छोड़ दी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे 3 मंथ के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो जारी रखना ज़रूरी है। तो बिल्कुल जी, अगर आप में से कोई भी ऐसे अफराद जिनको टाइफाइड है या हो चुका है, अगर वो दोबारा अपना इलाज जो है सही तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी वाली साइड पे आएँ तो अद्वियात मौजूद हैं, 100% इसका इलाज मौजूद है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ताहिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद E18 से। जी जी ताहिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये डॉक्टर आसिफ साहब से पूछना था जी जी कि मेरे कजन है, जी जी, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत है ना। कितने mm की पथरी है? ये सर इसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली, लेकिन आपका रेफरेंस से पता चला था तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये इस्लामाबाद E18 से बात कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में 2-3 पेशेंट्स है ना। अच्छा, तो उनको यही प्रॉब्लम थी गॉल ब्लैडर बिल्कुल, स्टोन ये की। जो तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया है। अच्छा, ठीक तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि वो ऑपरेशन करें, ठीक, अगर पॉसिबल है मेडिसिन से ना, जी जी, तो उस सिलसिले में आपसे बात कर रहा था। बिल्कुल इसका पॉसिबल है, काइंडली कोई गाइडेंस है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं कल, ताकि फौरी तौर पे इलाज शुरू किया जाए। गालस्टोन का यानी पित्ते की पथरी का 100% कामयाब इलाज मौजूद है और हम शेयर भी करते हैं लोगों के बिल्कुल, साथ। मेडिसिन के जरिए जो है इसका इलाज मौजूद है होम्योपैथी में। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर साहब मजीद भी इस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे पित्ते की पथरी के हवाले से इन्होंने कहा कि फैमिली में और भी 2-3 लोग हैं, उन्होंने ऑपरेट भी करवाया है। तो थोड़ा सा इस हवाले से, क्योंकि हम गए बगैर अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इनकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा और हम बता दें कि दवाओं के जरिए पित्ते की पथरी का इलाज मुमकिन है। बिल्कुल 100% मुमकिन है। अगर वो बड़ी पथरी है तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर वो छोटी पथरी है या मल्टीपल स्टोन्स हैं तो बड़े कम अरसे में ठीक हो जाता है। हमारा जो रूटीन में जो गाल स्टोन्स का जो
टेस्ट वाला प्रोटोकॉल है वो यही है कि 3 महीने हम रेगुलर मेडिकेशन चलाते हैं पेशेंट को, और 3 महीने बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें नज़र आ जाता है कि आया जो पथरी है मुकम्मल ख़त्म हो गई है या कुछ रहती भी है। फिर उसके बाद मज़ीद भी इलाज कंटिन्यू रखते हैं जब तक वो पथरी मुकम्मल ख़त्म ना हो जाए। 100% क्योरेबल है। पित्ते की पथरी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पित्ते की जो पथरी है वो बनती है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, और वो डिज़ोल्व हो जाती है पित्ते के अंदर ही और बाइल के साथ मिक्स होके ख़त्म हो जाती है। हमारे काफ़ी केसेस हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी हमने केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं। एक 23 mm की पथरी थी जो हमने डॉक्यूमेंट की है, एक 7 mm की पथरी थी जो मुकम्मल तौर पे 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो गई थी, वो भी हमने डॉक्यूमेंट की है और आपके साथ शेयर भी की थी अगर आपको बिल्कुल, याद हमने हो। प्रोग्राम में शेयर भी की थी। मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि इन्होंने कॉल की तो मैं चाह रही थी कि आप दोबारा से थोड़ा सा वो कर दें ताकि बाकी जो लोग भी सुन रहे होते हैं पित्ते की पथरियों के हवाले से जानना चाह रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि मेडिसिन के ज़रिए पित्ते की पथरियों का इलाज मौजूद है होम्योपैथी में। तो अगर आप वो करना चाहें, इलाज करवाना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और जो नज़दीक तरीन इलाकों में रिहाइश पजीर लोग हैं वो विजिट भी कर सकते हैं क्लिनिक पे। और देखिए जी, जो नौशीन जो गालस्टोन के साथ जो पेन होता है जो राइट साइड में और जो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो पेन और वो प्रॉब्लम्स पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई पेन नहीं होता पेशेंट को, लेकिन जो स्टोन है उसको डिज़ोल्व होने में कम से कम 3 माह हम देते हैं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम मज़ीद भी बात करेंगे। टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, यहीं से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गए थे एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉलर्स से भी बात कर रहे हैं और साथ साथ हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, क्योंकि कॉलर्स जो हैं डिफरेंट अपने हवाले से बात कर रहे होते हैं, बीमारियां बता रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत आगाही आपको पहुंचाई जाए। तो खैर, जैसा कि पित्ते की पथरियों के हवाले से बात हुई, तो अगर आप के इर्द गिर्द या आपके घर के अंदर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई मरीज़ मौजूद है जो पित्ते की पथरियों के मर्ज़ में मुब्तला है, तो आप ऑपरेट करवाने से पहले अगर होम्योपैथी की तरफ आएँ, इलाज मौजूद है मेडिसिन के ज़रिए। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस्लामाबाद या इसके इर्द गिर्द रहने वाले इलाके के लोगों के लिए बड़ी आसानी है कि डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे मौजूद होते हैं। पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, गफ़ार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक, और आप विज़िट भी कर सकते हैं। और जैसा कि पेशावर के कुछ इलाकों में भी आपका क्लिनिक है। बिल्कुल, पेशावर में हम थर्सडे वाले दिन होते हैं, गुलबहार मेन रोड पे हमारा क्लिनिक है, और 3 दिन हम जो है इस्लामाबाद में होते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। पीर, मंगल और बुध को इस्लामाबाद में होते हैं और जुमेरात को पेशावर में होते हैं। पेशावर के कौन से एरियाज जो हैं वो नज़दीक तरीन उनके लोग जो हैं आपसे रब्ता कर सकते हैं? पेशावर के किसी इलाके से भी, पेशावर मोटरवे से लेके हयाताबाद तक, और जो मेन रोड है गुलबहार पेशावर का, उधर हमारा सेंटर है, तो किसी भी एरिया को बड़ा फीजिबल और कनेक्टेड इजी होता है, पहुंच में है। तो बिल्कुल जी, आप विजिट कर लें। बजाय इसके कि फ़ोन पे आप लोग डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन तफसीलन आसानी हो जाती है आपके लिए भी मर्ज़ को समझना और उसके बारे में क्या एहतियात करनी है, इलाज क्या है, दवा का इस्तेमाल क्या है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। खैर, हम अगले सवाल की तरफ आएंगे जो है मैदे के अल्सर के हवाले से। काफ़ी सारे लोग हम देखते हैं कि इस मर्ज़ में भी मुब्तला हैं। मैदे के मुख्तलिफ अमराज होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ले लें, एसिडिटी ले लें, लेकिन मैदे का अल्सर होना ये बड़ी एक पेचीदगी का सामना करना पड़ता है मरीज को। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए कि मैदे का अल्सर है क्या। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं, फिर वापस आके इसका जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं यासर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी यासिर, क्या कहना चाहेंगे? यासर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बच्ची है, तकरीबन उसकी 12 साल उम्र है। ठीक है जी, आप ऐसे कीजिए, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। जी, बंद होगी। जी जी, आप बात कीजिए।
ये एक बच्ची है तकरीबन 12-13 साल की, ठीक। और उसके दिमाग का पता नहीं क्या मसला है, मेडिसिन यूज कर रही है लेकिन वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। वो कंडीशन है उसकी, बहुत पेन है, ये तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इसको। पेन होता है उसको सर में, सर की दर्द की शिकायत है 8 साल से? जी बिल्कुल। ठीक हो गया, आप उनको कल क्लिनिक लेके आइएगा जरूर, ठीक है? कोई MRI वगैरह भी आपने करवाई है? हेलो ठीक हो गया जी। एक बच्ची का मसला है, तकरीबन 7-8 साल से उनको दिमाग को कोई बता रहे हैं हाँ, वो मसला है। क्रोनिक हेडेक है उनको, 8 साल से सर में दर्द है, तो ज़रूर उन्होंने कुछ डायग्नोसिस भी करवाए होंगे। तो अगर 8 साल से दर्द है तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि इनको कोई फ़ोन पे दवाई बता दी जाए। बिल्कुल, अगर ज़रूरी समझें तो ज़रूरी क्या कि ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का मामला है, पूरी ज़िंदगी का मसला होता है। तो आप विज़िट कर लीजिए क्लिनिक का, वहाँ पे तफसीलन जो है डॉक्टर साहब मुआयना भी करेंगे बच्चे का, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो हम मैदे के अल्सर के हवाले से बात कर रहे थे कि मैदे का अल्सर है क्या? ठीक, मैदे का अल्सर मैदे का ज़ख़म ही तो है। जब मैदे में ज़ख़म बन जाता है, मैदे की जो अंदर लाइनिंग है, जब उसमें ज़ख़म बन जाता है तो वो मैदे का अल्सर कहलाता है, या पेप्टिक अल्सर भी कहलाता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये आपको पता है, जो एच पाइलोरी बड़ी आम है और तकरीबन 40-50% आबादी पूरी दुनिया की इफेक्ट है एच पाइलोरी से। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो आपके मैदे के अंदरूनी तह को ख़त्म कर देता है। जब आपके मैदे के अंदरूनी तह ख़त्म हो जाती है तो मैदे में तो कुदरती तौर तेज़ाब तो मौजूद होता है, तो वही तेज़ाब जो आपके हाजमे के इस्तेमाल में आना होता है, वही एसिड आपके मैदे में ज़ख़म बना देता है और आप स्टमक अल्सर का शिकार हो जाते हैं। तो अगर कोई स्टमक अल्सर का शिकार हो गया और फिर अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा और वो वक्ती जो दवाइयाँ होती है, एंटी एसिड्स हो गए या PPIs हो गए, अगर वो लेके गुजारा कर रहा होता है, सुबह एक गोली ले ली और बस दिन गुजर गया, फिर सुबह ले ली, तो वो किसी भी वक्त मैदे के कैंसर का शिकार भी हो सकता है। तो स्टमक अल्सर बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जी जी बिल्कुल जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एच पाइलोरी एक ऐसा जरासीम जो आपके मैदे के अंदर जाके ये बीमारी जो है पैदा करता है, और मैदे के अल्सर का अगर सही और बर वक्त इलाज ना हो तो ये मैदे का कैंसर भी हो सकता है। देखिए जी, कुछ अरसे तक ये समझा जाता था कि ये जो मसालों वाली खुराकें हैं या जो स्पाइसेस हैं, इसकी वजह से अल्सर बनता है। कुछ अरसे तक ये समझा जाता था, लेकिन जब मेडिकल साइंस एडवांस हुई, रिसर्च एडवांस हुआ, तो अभी ये इन्होंने तहकीक करके कंफर्म किया है कि जो स्टमक अल्सर है इसकी जो मेन वजह है वो एच पाइलोरी ही है। बिल्कुल जी। खैर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आयशा कोलचर से मैं बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने ये पूछना है कि मेरी मदर से जॉइंट अर्थराइटिस है, तकरीबन 10 साल हो गए, मेडिसिन ले रही है, मगर उसका जो दर्द है वो पेन वो बढ़ता ही जा रहा है, और टन में उसकी दर्द और भी बढ़ जाती है। तो एक ये पूछना था, और दूसरा ये पूछना है कि मेरा भाई है तकरीबन 20 साल का है, उसे मसला ये है कि उसके जो हमने दिल के जितने भी टेस्ट करवाए सारे साफ आए, मगर उसकी अगर अचानक कोई आवाज़ उस पर करे वो डर जाता है, और डर से वो बेहोश हो जाता है, और उसका दिल जो एकदम से बंद हो जाता है, वो सांस नहीं लेता और एकदम से ठंडा पड़ जाता है, और उसके होंठ भी नीले पड़ जाते हैं। ये मैंने पूछना था कि क्या मर उसको। आपको कुछ समझ आया? जी, आवाज़ बहुत कम आ रही थी आपकी, और समझ में थोड़ा सा अगर लाउड बोल सके आप। अच्छा, मैंने ये पूछना डॉक्टर से, मैंने 2 क्वेश्चन करने। एक ये मैंने पूछना है कि मेरी मदर है, उसे ज्वाइंट अर्थराइटिस है, तकरीबन उसे 10 साल हो गए, वो सिर्फ दवाइयाँ लेती है, जब दवाइयाँ लेती है तो वो ठीक रहती है, तकरीबन 2-3 घंटे के लिए उसे आराम आ जाता है, लेकिन फिर वही उसके दर्द वगैरह वही बढ़ जाते हैं, उसे आराम नहीं आता। एक ये पूछना था, और दूसरा मेरा भाई है, वो तकरीबन अच्छा, एक सवाल आपको समझ में आ गया? जी, समझ तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, बड़ा गौर करना पड़े। आप पर्सनल स्पीकर में, आप फोन बंद कीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है?
ठीक हो गया। इन्होंने अपने वालिदा के बारे में पूछा कि उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि ये आपके जोड़ों को डैमेज करती है। ठीक है, इसमें फिर जो एलोपैथिक साइड पे है वो स्टीरॉइड्स देते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी आपका जिस्म आपके जोड़ों के खिलाफ हो जाता है, तो इसमें जोड़ टेढ़े होने की तरफ भी जाते हैं, शदीद दर्द होता है जोड़ों में, और दवाई के साथ वक्ती तौर पे आराम आता है। जब दवाई मिस हो जाती है तो वही तकालीफ, वही शिकायत ज़्यादा हो जाती है। होम्योपैथिक में इसकी जो दवाई है, टिपिकल दवाई है, वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन इन्होंने 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, और ये इन्होंने तकरीबन सारी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल, आपने दवा का नाम नोट कर लिया होगा, तो ये आपने इस्तेमाल करनी है दवा, और ये आपने छोड़नी नहीं है दवा, इसका इस्तेमाल जारी रखना है। और ये अपने भाई का भी बता रहे थे कुछ जी, वो उनके भाई वो मुझे नहीं समझ मैं इसीलिए कह रही थी कि पश्तो स्पीकर हैं तो आप पश्तो में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को पश्तो आती है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि अपनी ज़बान में आप अपनी जब तकलीफ बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आती है। तो खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं, और मैदे के अल्सर के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या होम्योपैथी में मैदे के अल्सर की जो अद्वियात हैं वो मौजूद हैं, इलाज मुमकिन बिल्कुल है? मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और काफ़ी केसेस आते हैं जो एलोपैथिक साइड को एग्जॉस्ट कर चुके होते खुदा हैं। ना खास्ता, जैसे कि आपने बताया कि ये मैदे का कैंसर भी हो सकता है, तो कुछ लोग इसमें भी मुब्तला होंगे, तो क्या आया उसका भी इलाज है? बिल्कुल, होम्योपैथिक में जो स्टमक कैंसर है उसका भी 100% इलाज मौजूद है, और स्टमक अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन मरीज़ की कंप्लायंस भी ज़रूरी होती है, यानी मरीज़ को जो स्पाइसी खुराक है उससे परहेज़ करनी होती है, जो बाज़ारी खुराक है उससे भी अवॉइड करना होता है, जो पानी है वो भी उबला हुआ पानी पीना चाहिए होता है, ताकि एच पाइलोरी का जो खदशा है वो कम से कम रहे। क्योंकि अगर पहले से मैदे में अल्सर है और आपने फिर कोई कंटेमिनेटेड खुराक ली या पानी लिया जिससे आपको दोबारा एच पाइलोरी हुआ, तो वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकता है। बिल्कुल जी, ये एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने मिर्च मसाले और स्पाइसी खाने जो हैं और बाहर के बने हुए खाने जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये चीज़ें बताई थी। तो खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं एजाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई है, उसके तकरीबन 5-6 साल से उसके जो गुर्दे हैं वो डायलिसिस पे है ना। अच्छा, ठीक। तो उसके लिए कुछ डॉक्टर साहब से दवाई पूछना चाह रहा हूँ कि उससे छुटकारा ठीक। उनका GFR उनका कितना है? GFR उनकी उम्र जो है 36-7 है। हफ्ते में कितनी दफा डायलिसिस? 2 बार हो रहे हैं डायलिसिस। 2 बार हो रहे हैं। और उनके टेस्ट वगैरह है? GFR आपको पता है कि उनका GFR जी उनके जो यूरिक एसिड है वो ज्यादा है, और उसके ऊपर बोलते हैं चर्बी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ठीक हो गया, आप इस तरह तो वो कीजिएगा। सेहत में भी छोटे हो गए और हरकत भी नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन हर केस पे डिपेंड करता है। अगर उनका केस आप हमारे पास ले आए इस्लामाबाद क्लिनिक में, तो हम उनका केस स्टडी करके फिर आपको मशवरा दे सकेंगे कि आया काबिल इलाज है, रिवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है? ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। बेहतर है कि आप विज़िट कर लें इस्लामाबाद पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक मौजूद है। आप आके तफसीलन अगर मरीज़ को भी साथ ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स जितने भी हैं आप साथ लेके आएँ। देखिए जी, जो CKD के केसेस हैं या जो CRF के केसेस हैं, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस हैं, इनमें काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो डायलिसिस से रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिनका डायलिसिस से बाहर आना मुश्किल होता है। हर एक इंडिपेंडेंट केस जो है वो अलग नोयत का होता है, तो हर केस को प्रॉपर स्टडी करने के बाद हम फिर ट्रीटमेंट उनका प्लान करते हैं। और उसमें होता ये है कि उनके डायलिसिस का दौरानिया कम से कम होता जाता है, और ग्रेजुअली जो है वो डायलिसिस से पेशेंट की जान छूट जाती है। लेकिन यहाँ भी पेशेंट कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है, यानी मरीज़ को अपने आप को हमारे हवाले करना पड़ता है, तभी वो चांस बनता है। बिल्कुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुश्ताक बात कर रहा हूँ से। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे?
میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری مسز ہیں، ان کو تھائرائڈ کا پرابلم تھا کافی، ان کو 94 95 تک ان کا تھا TSH تھا سر. اچھا تو بہت وہ تو پھر ہم نے قائد اعظم انٹرنیشنل سے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی، وہ تو ابھی ود ان لمٹ ہے، لیکن ان کو جو مین پرابلم ہے نا سر، گھٹنوں سے نیچے یہ ان کی ہے ٹانگیں ہیں، ان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک درد بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تائروکسین لے رہی ہے؟ تھائرونال سر 125 cm ہوتے کیا وہ لے رہی ہیں سر. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں، وہ استعمال کرنی ہے ان کے دردوں کے لیے، اور ایک میں تھائرائڈ کے لیے دوائی بتاتا ہوں، وہ بھی استعمال کروانی ہے، اور 3 مہینے بعد پھر آپ نے جو TFTs ہے یعنی تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. میں نے آپ کے دونوں آپ کے نمبر بھی نوٹ کر لیے اور آپ کو واٹس ایپ بھی نوٹ کر لیے، تو اگر آپ بتا دیں تو میں انشاءاللہ پھر بعد میں ٹیسٹ کروا کے تو آپ سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو دوائی کے نام بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا ٹانگوں میں درد کی شکایت ہے تو اس کے لیے تو رسٹاکس اچھی دوائی ہے. رسٹاکس 6 طاقت میں لینی ہے اور صبح اور شام کو لینی ہے، تو انشاءاللہ ان کے جو ٹانگوں میں دردوں کی شکایت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو ان کا جو TSH بہت ہائیلی ریزڈ ہے، تو اس کنڈیشن میں دوائی ہے تائروڈینم. دوائی ہے تائروڈینم. یہ 200 پوٹینسی میں لینی ہے اور ہفتے میں 1 ڈوز لینی ہے، صبح نہار 5 قطرے. اور پھر 3 مہینے بعد انہوں نے اپنے ٹیسٹ ریوائز کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں کافی امپرومنٹ آ چکی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دوا کا جو نام ہے آپ تک ڈاکٹر صاحب نے پہنچایا، آپ نے استعمال کرنی ہے، اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ نے نوٹ کر لیا ہے، تو ضرور آپ نے اپنے ٹیسٹ اور رپورٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو سینڈ کر دیجیے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، نذرانہ. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے بیٹے کو مسئلہ ہے گلے کا، دمے کا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی میں نے 2-3 ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا، انہوں نے سرجری بتائی ہے، لیکن میں سرجری نہیں کروانا چاہ رہی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. دمے میں سرجری نہیں کرنا. گلے میں انہوں نے کہا یہ ریموو کرنے پڑیں گے. گلے کا مسئلہ ہے؟ جی جی گلے میں ٹانسلز ہے، انہوں نے کہا سرجری کروانی. اچھا گلے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں دوائی بھی بتاتا ہوں. نہیں کروانا چاہ رہی کوئی اچھی سی، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کروانا بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں کروانا چاہیے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. دیکھیں جی جو ٹونسلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوتا ہوں کہ یہ آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس سسٹم ہے. یعنی اگر کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی جراثیم اگر آپ کے جسم کے اندر جا رہا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کے جو ٹونسلز ہیں وہ اس کی جو حفاظت ہے جسم کی وہ کرتے ہیں، اور جو بھی بیکٹیریاز ہیں وہ اس کو انگلف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اس میں سوجن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹونسلز جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھانے پینے میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، گلے میں درد بھی محسوس ہوتا ہے. تو عموماً اس میں ایلوپیتھک سائڈ میں اینٹی بایوٹک سپلائی کی جاتی ہے جو اکثر فیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کو آپریشن کا بتایا جاتا ہے. تو بالکل اس کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے. ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ٹونسلز کا کامیاب علاج موجود ہے، اور بغیر آپریشن کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو میں 2 دوائیاں بتاؤں گا، دونوں دوائیاں انہوں نے استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ ان کے ٹونسلز جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، انفلیمیشن اس میں ختم ہو جائے گی، اور ان کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، اور آپریشن سے بھی بچ جائیں گے. ایک دوائی کا نام ہے بیلاڈونا. 30 پوٹینسی میں استعمال کرنی ہے. دوسری دوائی کا نام ہے ہیپر سلفر. بیلاڈونا اور ہیپر سلفر، یہ دونوں دوائیاں 30 پوٹینسی میں استعمال کرنی چاہیے، اور ریگولر استعمال کرنی چاہیے 2-3 مہینے تک. ان کو آرام پہلے 2-3 دن میں آ جائے گا، لیکن ریگولر یہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ یہ آپریشن سے بچ سکے. صحیح. دوا کا نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ تمام مریض جو ٹونسلز جن کو ہیں وہ لے سکتے ہیں؟ بالکل یہ ہر ایک مریض لے سکتا ہے، لیکن ٹونسلز میں بھی پھر اور بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہے. بعض اوقات بچوں کے ہم ٹونسلز دیکھتے ہیں اس میں
पस आ जाती है। फिर उधर मर्कसॉल भी हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ केसेस में हम सिलीशिया भी इस्तेमाल करते हैं, ब्राइटाकार्ब भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बेलाडोना और हेपरसल्फर दवाई है ये कोई भी टॉन्सिल्स का मरीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि अक्सर लोगों को टॉन्सिल्स होने का मसला रहता है और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उन्हें ऑपरेशन का ही बताया जाता है उनको कि जी ऑपरेट करवाएं तो टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है होम्योपैथी की कि इसमें दवाओं के ज़रिए जो है इलाज है, सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो अगर आपके बच्चों में या फिर बड़ों में कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप होम्योपैथी वाली साइड पे आइए, इसका इलाज मौजूद है दवाओं के ज़रिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, महदूद वक्त था और उसमें हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे सवालात किए जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और जितने भी लोगों को डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपने विज़िट करना है तो ज़रूर आप विज़िट करें, ये सेहत का मामला है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ और बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने साथ दिया, प्रोग्राम में शामिल रहे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त लेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले मंगल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।